कि हमने मेहनत नहीं की है, हमने जितनी मेहनत की है उससे ज़्यादा इन्होंने मेहनत की है। सुबह 6 बजे आना, रात को 12 बजे जाना। हमारा जो स्टेनो का जब स्किल का एग्जाम था तो हमारी एक ही थ्योरी थी, आपको नींद आए चाहे आपको नहीं आए, पर आपका हाथ चलता रहना चाहिए। और उसी का परिणाम है कि राजस्थान टॉपर हमारे यहाँ से, राजस्थान की 2nd रैंक हमारे यहाँ से और राजस्थान में 7th रैंक हमारे यहाँ से। इसके बाद भी हमारी टॉपर्स हैं, 15वीं रैंक हमारी है, 27वीं हमारी है, 30वीं हमारी है, 38वीं हमारी है, 40वीं हमारी है और भी आगे तक हमारी जा रही है। ये बड़ी बात होती है कि टॉप 10 रैंक्स में 3 रैंक जो आपके सामने बैठे हैं ये आइडियल कैरियर पॉइंट कुचामन सिटी से निकले हुए हैं। तो ये निर्देशक महोदय का साथ में इन स्टूडेंट्स की जो मेहनत है, पुरजोर जो मेहनत है वो काम आ रही है। सवालों का सिलसिला यूं ही चलेगा। मैंने सर से बहुत सारे सवाल किए हैं। अब मैं जो राजस्थान टॉप जिन्होंने किया है मैं उनसे बात करना चाहूँगा। आपका संक्षिप्त परिचय खुशी जी। नमस्ते, मैं खुशी जांगेड़, डॉटर ऑफ श्री ओम प्रकाश जांगेड़ और सुमन जांगेड़। मैंने हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट 2nd ग्रेड भर्ती परीक्षा 2024 में राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया और इसी तरह मैं राजस्थान टॉपर रही हूँ। और मैंने I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had
all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. है PWD में, राजेश जी के मैडम अपने वन विभाग में और मैं खुद ऑलरेडी LDC हूँ अपने महात्मा गांधी स्कूल में। हम तीनों के द्वारा इसका संचालन होता है। दिन में मैं और राजेश जी दोनों देखते हैं, यानी हमारा काम है लगभग सुबह 6 बजे से लेकर रात को 7-8 बजे तक का। फिर हमारे जो पार्टनर, थर्ड पार्टनर कमल जी, वो अपनी ड्यूटी करके 6 बजे वो आते हैं और रात को 1 बजे तक उनका काम है करना। वो भी रात की 2 प्रेजेंट होती है बच्चों की, 7 से 10 वाले राउंड की और 10 से 1 वाले राउंड की, यानी सुबह 6 से लगभग रात को 12 बजे तक का हमारा टाइम टेबल चलता है। मतलब ये देखा जाता है कि बच्चा उपस्थित है या नहीं। अभी जैसे अभी LDC का हमारा बैच चला, लेटेस्ट बैच चला है, उसमें 12 क्लास चलती है, 3 मैथ की क्लास चलती है, 4 GK की है, 2 साइंस की है, 2 इंग्लिश की है और 1 हिंदी की है। और पर डे का एक उनका टेस्ट शेड्यूल आया हुआ है, तो पर डे का एक उनका टेस्ट है। तो हम ये नहीं देखते कि बच्चे को क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, हमें देखते कि हमें बच्चे को सिखाना है। हमारा टारगेट है कि हमें बच्चे को टॉप में लाना है, यानी उसको सिलेक्शन दिलवाना है। एट प्रेजेंट हम सभी टीचर्स को हमने कह रखा है कि आप बच्चे को सिखाइए। सिलेबस हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, हम क्या चाहते हैं कि सिलेबस यदि थोड़ा कम भी हो जाएगा तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, पर जो हुआ वो हमारा परफेक्ट होना चाहिए। तो जैसे सर आपने कहा कि 3 व्यक्ति मिलकर आप संचालन करते हैं, तो कभी कुर्सी की लड़ाई आपके नहीं होती? कुर्सी की लड़ाई कभी नहीं। हमारे क्या ऑफिस में एक ही कुर्सी है और हमने शुरू से जब से स्टार्ट किया तब से एक ही कुर्सी रखी है। कभी भी हमारे ये नहीं होता कि यार वो बैठे हैं, कभी मैं बैठ जाता हूँ, कभी आप तो ये तो बड़ी बात है कि डायरेक्टर्स बैठते हैं। हमारे तो जब ये स्टूडेंट थे तो जब हम टाइप वगैरह का हमें कोई काम होता है तो हम इनको हमारी वाली कुर्सी पे बैठते थे घरों को, तो हम कुर्सी की लड़ाई तो हमें कभी हुई ही नहीं हमारे यहाँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि 3 व्यक्ति मिलकर एक संस्था को कभी कभी तो हमारे स्टूडेंट में हमारे डायरेक्टर हो जाते थे। तो ये बताओ, इतनी फेमिलियर जो है आपको कोचिंग मिल रही है, तो इससे अच्छा आपके लिए और क्या ही होगा। आपको स्टिक है, हम मानते हैं, पर हम करें क्या, क्योंकि आज की परिस्थिति ऐसी है, बच्चों के लिए हमें स्टिक होना पड़ता है। हम इनके लिए स्टिक हैं, हमारे लिए स्टिक नहीं है, क्योंकि ये इनकी लाइफ का सवाल है। आज हम थोड़े से स्टिक थे, हो सकता है उस समय इनको बड़ा दुख हुआ होगा, पर आज इनके लिए हम हीरो हैं, क्योंकि ये फर्स्ट रैंक है, बिल्कुल, ये सेकंड रैंक है, ये 7th रैंक है। ऐसे रैंक वाले खूब है, और ऐसे भी हैं जो हो सकता है कभी जॉब नहीं लगते रहो, आज जॉब कर रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सर का निर्देशन ही है कि आप जो है इतना कुछ सीख पा रहे हैं इस पॉडकास्ट से या इस वीडियो से। अगला क्वेश्चन मेरा सर आपसे ये रहेगा कि आइडल को आपने एक बहुत बड़े स्तर पे पहुंचा दिया है, तो इस तक जो कार्य रहा आपका वो कितना जटिल रहा, कौन कौन सी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा सर? मैंने बताया ना कि प्रारंभ में तो स्थिति ऐसी थी, एक समय तो 26 लाख का कर्जा था, कभी हार नहीं मानी। ये था कि जिस दिन पहला रिजल्ट आएगा उस दिन कर्जा चूक जाएगा। पहला रिजल्ट आया था जूनियर अकाउंटेंट और उसके साथ हमारा कर्जा चूक चुका था। और आज ईश्वर की कृपा से स्थिति ऐसी है कि हम प्रचार नहीं करते। हमारी सबसे अच्छी थ्योरी है, हम कभी भी किसी स्टूडेंट के नंबर्स नोट नहीं करते। हर कोचिंग वाले, प्रत्येक कोचिंग वाले नंबर्स नोट करते हैं। जो भी आपके पास क्यूरी आती है उसकी हम नहीं करते। हमें कहते हैं जिसको ज़रूरत होगी वो आएगा, और जिसको ज़रूरत होती है ना वो 100% रिजल्ट लेके जाता है। हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता कि
ये फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है या थर्ड डिवीजन, हमारे लिए मायने नहीं रखता है कि वो अब कितना दौड़ना चाहता है। आप यदि थर्ड डिवीजन हो पर आपको लगता है कि मैं दौड़ सकता हूँ, आइए हम आपको दौड़ाएंगे और ऐसी जगह दौड़ाएंगे जहाँ आपको यकीन नहीं होगा कि आप कहाँ पहुँच जाओगे। बिल्कुल, यही बड़ी जो लाइनें थी ना, छोटे से शब्दों में सर ने जो है बहुत बड़ी बात कह दी कि आपको दौड़ना पता नहीं आता है या नहीं आता है, लेकिन ये दौड़ना सिखाएंगे और दौड़ना तेज सिखाएंगे ताकि आप जो है यहाँ बैठने के काबिल हो सकें, टॉप 10 में आने के काबिल हो सकें। तो अगला क्वेश्चन मेरा सेकंड रैंक से रहेगा। मैं स्वागत करता हूँ आइडियल कैरियर पॉइंट में। संक्षिप्त परिचय मैम अपना। नमस्कार, मेरा नाम है करिश्मा राठौड़, डॉटर ऑफ श्री मधुराज सिंह राठौड़, श्रीमती बबली कंवर, और मैंने स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2024 में आइडियल कोचिंग से तैयारी की और ऑल राजस्थान में सेकंड रैंक प्राप्त की। बिल्कुल मैम, तो मेरा अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि आपके सिलेक्शन में आइडियल का जो योगदान है आप कौन से स्थान पे रखना चाहोगे? एक होता है प्रथम स्थान, एक द्वितीय स्थान, तो आप कौन से स्थान पे उसको रखना चाहोगे? सारे स्थान कोचिंग के है, यहीं से लगी हूँ। इससे बड़ी बात और क्या होती है कि सेकंड रैंक कह रहे हैं, सारे स्थान माता पिता को सेकंड पे रख के कोचिंग को प्रायोरिटी दी है, कोचिंग को प्राथमिकता दी है, तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि सर ने इनको फैमिली जैसा माहौल दिया है, सर ने इनको निर्देशन दिया है, स्ट्रिक्टनेस दी है, साथ में आज सिलेक्शन दिया है, इनके हाथ में सेकंड रैंक है। हमें आपकी एक्टिवनेस चाहिए, हमें हमारे लिए ये कोई मायने नहीं रखता कि आपको गणित आती है नहीं आती, आपको इंग्लिश आती है, आप वेट कीजिए, हम सब कुछ सिखाएंगे आप। बिल्कुल, वो आपकी समझ है सर कि आप बच्चे को कितना सिखाने के लिए प्रेरित करते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि सर जैसे वर्तमान परीक्षा पैटर्न आ रहा है, आपने रीट का क्वेश्चन पेपर अभी देखा होगा, तो आप आइडल में और कुछ बदलाव करना चाहोगे उस परीक्षा पैटर्न में, आपके टेस्ट पैटर्न में? हमें परीक्षा पैटर्न में बदलाव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा परीक्षा पैटर्न ऑलरेडी पहले से ही टफ था, हमने टफ ही रखा है, हमने हमेशा से ही लेवल का पढ़ाया है, क्योंकि इजी पेपर आता है तो हमें नुकसान होता है, क्योंकि कहते हैं ना मारवाड़ी में कहावत है गधे और घोड़े सब बराबर रहते हैं, पर जब लेवल का पेपर आता है ना तो मज़ा आता है गणों लोग, क्योंकि हमारे जो लेवल का पेपर आता है ना तब लाइन लगती है, टॉपर्स बनते हैं गणों। मतलब शुरू से ही आपने वो अपना लेवल लेके चले हो कि लेवल आपका हाई होना चाहिए और जितना लेवल हाई रहेगा ना उतने टॉपर्स अच्छे आएंगे। तो मतलब आप कहते हैं कि अभी जो चल रहा है थोड़ा सोशल मीडिया पे कि परीक्षा पैटर्न हार्ड हो रहा है, क्वेश्चंस को समझने में मुश्किल हो रही है, तो आइडल में अगर आप आओगे तो आपको जीरो लेवल से जब उठाएंगे ना तभी से वो परीक्षा पैटर्न जो है फॉलो किया जाएगा। आप देखिए कि इससे हार्ड क्या हो सकता है, हमारे पास हमारा जो पीरियड्स होता है वो या तो जो कालांश होते हैं वो या तो 40 मिनट के होते हैं या 45 मिनट के होते हैं, पर हमारे 100 क्वेश्चन होते हैं, उस बच्चे को उस 40 या 45 मिनट में ही उसको 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। प्रारंभिक स्थिति ऐसी होती है कि आधे छूटते हैं, कभी किसी के 50 छूट गए और लास्ट में जाते जाते वो 40 मिनट में पूरा पेपर अटेम्प्ट करने लग जाते हैं। मतलब टाइम मैनेजमेंट के पूरा साथ में उनका एडजस्ट करवाते हैं, क्वेश्चन का अटेम्प्ट जो है वो पूरा आराम सिखाते से। हैं जी आप। अच्छा, उसका रिजल्ट सर क्या घर वालों तक पहुंचाया जाता है या अपने संस्था तक? घर वालों के पास भी जाता है। अच्छा। और संस्था के बाहर जहाँ है उनका डेस्क बोर्ड है उस पर भी चस्पा कर दिया जाता है, और साथ हमारी एक फाइलिंग होती है, हम बैठ के तीनों चारों बैठते हैं, टीचर्स को बिठाते हैं, तो उस पर बाकायदा हम एनालिसिस करते हैं कि किस बच्चे की क्या स्थिति है, कहाँ कौन सी स्थिति में, किसको हमें किस स्थिति में लाना है, तो सारा उसके ऊपर होता है। अच्छा, जैसे मान लो कि सर कोई बच्चा जीरो से उठ के आपके पास में आया हो, जिसको पता नहीं हो कि राजस्थान जीके क्या होता है या कोई और सब्जेक्ट क्या होता है, तो उसको आप क्या फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक या 7th रैंक तक पहुंचा सकते हैं? जी मैम, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जीरो ये जीरो ही थे, जीरो ना, इन्हें अपने सब्जेक्ट का बहुत अच्छा नॉलेज था, पढ़ने वाले थे, हमने इनको बूस्ट किया, हमें यही पता चल चुका था कि ये लोग दौड़ने के लिए तैयार हैं, गणों लोग बूस्ट किया और ईश्वर की कृपा से आज ये अपनी अच्छी रैंक लेके बैठे। तो जीरो कोई उनके लिए मायने नहीं रखता। हमने कहा ना थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, स्टूडेंट थोड़ा एक्टिव हो, उसको इच्छाएं होनी चाहिए। सीखने की उसी मेरे उत्सुकता पास आई थी ना पहले दिन, तो मुझे उसी दिन पता चल गया था इसकी नौकरी तो लगेगी, ये तो कन्फर्म हो चुका था। मैंने इसको वॉच किया महीने भर और मैंने इसको बिठा के कहा कि यार तू राजस्थान टॉप कर सकती है कन्फर्म। तो इसने कहा कि सर मैं कर सकती हूँ क्या? कर सकती है। और देखो मैं कह रहा हूँ करिश्मा के लिए मैंने नहीं कहा था कन्फर्म लोग, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था, बट कहते हैं ना कि संगति का असर होता है, या फिर हो सकता है कंपटीटर तो कंपटीटर होता है, और बहुत अच्छी बात है कि ये सेकंड रैंक आई कन्फर्म लोग। नहीं सर, हमें ये भी सुनने को मिला है कि बज्जी सर अगर कह देते हैं कि तेरा सिलेक्शन होगा तो फाइनल होता है, क्या ये बात भी सच है? नहीं, ये तो सच तो इसलिए है कि जैसे हम वाच करते हैं, जैसे अकेली सिर्फ पढ़ाई के आधार पे कैलकुलेशन नहीं होती है, उसकी दिनचर्या, उसकी जैसे मैं बताऊँ आपको कि ये खुशी जब भी गांव से आती है ना, संडे को जैसे कभी जाती, मंडे को कभी आती, तो जो लेट आते हैं हम उनको नीचे बिठाते, तो इसको मैं नीचे बिठाता, इसको कभी मैंने छूट नहीं दी कभी। ये मेरे को पूछते, इसने अभी पूछा था मेरे को कि सर आपने मेरे को छूट नहीं क्यों दी? मैंने इसको कहा था मुझे तेरे को बहुत ऊंचा बिठाना था,
यदि मैं इसको छूट देता ना तो हर बार और ज़्यादा लेट आने की कोशिश करती। इसको पता था कि सर और कोई कहे नहीं कहे मुझे तो पक्का नीचे ही बिठाएंगे कानून। वो बात इन्होंने भी सच कर दिखाई और सर का जो स्ट्रिक्टनेस था वो उसी के कारण आज जो है सेकंड रैंक लेंगे बैठे हैं। सर एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, जैसे आइडल के स्टूडेंट तो मान लो कुछ सीमित स्टूडेंट ही आ पाते हैं सर, तो किसी की जो है इकोनॉमिक कंडीशन वैसी नहीं होती, तो उनके लिए आप क्या ऐसा कुछ खास ऑफलाइन या ऑनलाइन ऐसा कुछ? अब प्लानिंग चल रही है, ऑनलाइन की भी प्लानिंग चल रही है, एक बुक बना रहे हैं हम। अच्छा। पर हमने कहा ना हमारी बुक भी है ना, तो आप उसको देखोगे तो हम हर एक चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर रहे हैं। बुक का प्लान ही रंगीन बुक का है। जैसे स्टेनो के टाइम हमने हमारी खुद की बुकलेट थी, उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं पढ़ने दिया था। 215 या 20 स्टूडेंट थे हमारे पास और हमारे 151 स्टूडेंट ने रिटर्न पास किया है। इस बुकलेट के अलावा हमने कुछ भी अलाउ नहीं था। आप क्लास में कुछ लेके भी नहीं आओगे, यानी गेट से जब आते थे ना तो आपके बैग चेक होते थे कि बुकलेट के अलावा आपके पास कुछ नहीं होनी चाहिए। हमारी खुद की बुकलेट थी और खुद की क्वेश्चन बुक थी, उसके अलावा हम कुछ भी अलाउ नहीं कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक बड़ी बात होती है कि प्रॉपर नोट्स, एक उचित गाइडेंस आपको सिलेक्शन तक लेके जाता है, टॉपर्स तक लेके जाता है जो आपके सामने बैठे हैं। मैंने बहुत बार टॉपर्स का नाम ले लिया, ये इसलिए कि आप भी मोटिवेट होइए, आपको भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। मेरा अगला क्वेश्चन फर्स्ट रैंक से है कि आइडल में आने से पहले और आइडल में आने के बाद मतलब क्या बदलाव आया? आप पहले तैयारी कितनी करते थे, आपका बेस क्या है, या आइडल में आने के बाद आपके क्या चेंजेस हुए, वो एक बार बच्चों को ज़रूर बताइए। मैं मतलब पहले मैंने कभी कोचिंग नहीं की है, मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। मैं पहली बार किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की मैंने, और मैंने आइडिया से ही की थी। तो मतलब तैयारी तो ऐसे मान लो कि 12th में मेरा सब्जेक्ट तो बायोलॉजी है, मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा जीके सब कुछ मतलब बाकी सारे सब्जेक्ट ठीक हो गए। अच्छा, मतलब प्रॉपर तैयारी केवल आइडल में आके आपने प्रॉपर तैयारी केवल आइडियल में आके। पूर्ण आपने भी और मैम आपने भी, मतलब तीनों जो टॉपर्स हैं इन्होंने केवल, ऐसे कहते हैं ना कि कई बार अपन कहते हैं कि एक किताब से सिलेक्शन नहीं होगा या एक नोट से सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ 3 टॉपर्स जो हैं हमारे सामने बैठे हैं, तीनों ने आइडल के नोट्स पढ़ के, केवल एक सर बताए थे, अभी सर ने बताया था कि एक बुकलेट पढ़ के जो है इन्होंने सिलेक्शन लिया है जो आइडल की बुकलेट है। ऐसा नहीं कह रहा कि उस बुकलेट में सब कुछ है, लेकिन वो चीज़ है जो आपको सिलेक्शन दिला सकती है, वो विषय वस्तु है जो आपको उस पड़ाव तक पहुंचा सकती है जिस पड़ाव तक आप पहुंचना चाह रहे हो। ठीक है, मेरा अगला सवाल पुनः जो है सर से पूछूंगा, क्योंकि इस कोचिंग की संस्था के बारे में जानने के लिए जो है सर ही सबसे ज़्यादा उचित हैं। ये पढ़े हैं, इन्होंने सीखा है, सर के निर्देशन में इन्होंने देखा है, लेकिन इस संस्था के बारे में अगर आपको जानना है तो वो सर ही बता पाएंगे। तो मेरा अगला क्वेश्चन पुनः बजरंग जी सर से है कि सर हर भर्ती में आप सिलेक्शन देते हो, तो इतने सिलेक्शन सर कैसे दे पाते? एक संस्था जो इतने सिलेक्शन कैसे दे पाएगी? क्या ना, हमारी टीम है खुद की, जैसे हम तीनों पार्टनर्स हैं और हमारे जो मैंने कहा स्टाफ है ना, वो भी एक एज ए डायरेक्टर ही काम करते हैं। कोई भी स्टाफ फ्री प्रेशर्स में काम नहीं करता कि आपको सिलेबस करवाना है। सबके सामने एक ही टास्क होता है कि आपको सिलेक्शन करवाना है। बिल्कुल। इंग्लिश पढ़ा रहे हैं के सर, 2013 से हमारे आप पढ़ा रहे हैं। जब से मेरी कोचिंग स्टार्टिंग की तब से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। मैथ पढ़ा रहे हैं MS गुरु, जीके पढ़ा रहे हैं रणजीत सिंह जी, शानदार उनकी खुद की कोचिंग रही है, अच्छे टॉपर भी रहे हैं अपने। एक आपके मैथ पढ़ा जीके पढ़ा रहे हैं दिलीप जंडा, वो भी एक शानदार टीचर्स हैं हम लोग। इसके अलावा इंग्लिश का मैंने बता दिया आपको, हिंदी पढ़ा रहे हैं जोगेंद्र जी, वो भी शानदार, पिछले 4-5 साल से मेरे ही पढ़ा रहे हैं हम लोग। यानी यूँ कहना हमारी जो टीम है वो टीम भी, गजानन जी है कंप्यूटर रीजनिंग के टीचर हैं, तो टीम भी है ना पूरी अपना सारा जोर यहाँ लगाती है। मतलब टीम ये कोशिश करती है कि केवल बजरंग जी सर नहीं, केवल राजेश जी नहीं, केवल कमल जी सर नहीं, हम सारे मिलके जो है सिलेक्शन बने, हम प्रयास करें कि सिलेक्शन बने। तो वो जो है ऐसा निर्देशन मिलना कि आप फ्री हैंड है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें केवल सिलेक्शन चाहिए, हमें केवल बच्चे की मेहनत चाहिए। सर एक और छोटा सा क्वेश्चन, इतने सिलेक्शन आपने दिए, आपने बताया कि 1000 से प्लस सिलेक्शन हो गए, तो जाहिर सी बात है कि सर आप सभी की नज़रों में आओगे। तो मैंने एक बार पहले भी सुना था कि SOG की जांच भी आइडल कैरियर पॉइंट में हुई है। 2 बार हमारे जो पिछले साल जो स्टेनो था 2020 वाला, उसमें हमारे 91 बच्चे सेकेंड राउंड में पहुंचे, यानी हमारे 150 बच्चों ने एग्जाम दिया, 159 स्टूडेंट्सों ने एग्जाम दिया था, 159 के रिटर्न पास थे, उनमें से 91 सेकेंड राउंड तक पहुंचे और 67 का यानी 67 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो हमारी बाकायदा शिकायतें हुई, बाकायदा उसकी जाँच हुई। SOG ने 2 बार हमारे यहाँ जाँच की है और दोनों बार हमें क्लीन चिट दी है। तो मैंने सुना कि आपका विधानसभा विधानसभा में राजेंद्र राठौर जी ने बाकायदा प्रश्न उठाया था, क्योंकि उसमें कांग्रेस सरकार थी, तो कहा कि भाई कुचामन में एक कोचिंग है, और उन्होंने हमारा नाम नहीं लिया पर वो इनडायरेक्ट रूप से हमें ही उन्होंने
इंडिकेट टारगेट किया था। लेकिन जब एक कहता है धरातल पे आके कोई देखेगा तो वो जानेगा कि यहाँ का सिस्टम क्या है, यहाँ कैसे कौन से नियम फॉलो होते हैं। और मेरे हिसाब से सर अगर जयपुर से कोई टीम आई होगी वो बड़ी बात होती है कि उनको भी अचंभा होगा कि इतने सिलेक्शन कैसे दे सकती है। या जिनके बच्चे पढ़ के गए उनको तो पता है कि कौन सा संघर्ष जो है आइडल कैरियर पॉइंट करवाती है बच्चों से, कौन सी मेहनत करवाती है, कौन से नियम कड़े नियम जो है। एक ऐसा कहते हैं कि इतने कड़े नियम तो शायद जेल में होते हैं, ऐसा कहा जाता है। कहते हैं स्टूडेंट जब एडमिशन लेने आता है तो हम साफ कहते हैं उसको भैया देख जेल है, पर यहाँ से दो सिस्टम है, यदि तू ईमानदारी से भुगतेगा तो जेलर बन के जाएगा और बेईमानी रखेगा तो कैदी तो है ही। वही बात है सर, एक जाहिर सी बात है, एक सिंपल सी बात सर ने समझाई। अगर अनुशासन में रह सकते हो तो सिलेक्शन हो जाएगा, अगर नहीं रह सकते तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो सर आगे आने वाली जो पीढ़ी है जो एलडीसी की तैयारी करने वाले हैं या आगे जो भी भर्ती आएगी उनके लिए छोटा सा संदेश अगर आप देना चाहो तो। अभी हमारे एलडीसी का बैच चल रहा है और हमारा टारगेट 100% का है। इस बार हमने ये सोच रखा है कि क्यों नहीं हो सकता, हम ये चाहते हैं थोड़ा बच्चे हमें सपोर्ट करेंगे तो आराम से जीवी में। कंप्यूटर टीचर का चल रहा है, कंप्यूटर टीचर में भी अच्छा रिजल्ट है, पिछली बार आई में हमारे अच्छे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और कंप्यूटर शिक्षक में हमारे अच्छे बच्चे। अभी 4th ग्रेड का होता सर? 4th ग्रेड में तो यूँ मानिए कि राजस्थान में ढूंढने पे 4th ग्रेड के स्टूडेंट मिलेंगे, पर हमारे 150 प्लस बच्चे, हमारे पास लगभग 375 बच्चे थे और 150 प्लस की हमारे पास सूचना आ चुकी है वो सिलेक्ट है। जबकि आपको कहीं भी एक कोचिंग से इतने तो नहीं मिलेंगे। अब कोई अपने नाम झूठा ही लगा दे वो अलग बात है, पर वास्तविकता में ना इतने आपको कहीं नहीं मिलेंगे। 150 सिलेक्शन 4th ग्रेड वालों सुन लो, आप कहाँ थे? अगर पहले आइडल में आ जाते तो सिलेक्शन। पर हमने 4th ग्रेड के लिए भी बाकायदा प्रॉपर बेस था, 3 मैथ की क्लास, 3 इंग्लिश की क्लास। हमने जो सब्जेक्ट लगे कि ये सब्जेक्ट इनको मात दे सकते हैं, हमने उन्हीं सब्जेक्टों को पहले टारगेट रखा। मतलब टारगेट आपका सिलेक्शन दिलवाना था सर, जो सर ने जो दिलाया है। पर ये तो मेरिट हाई रह गई थी, मेरिट थोड़ी लो हो जाती ना तो ये 100% रिजल्ट रहता हमारा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने जो है इतना समय दिया और टॉपर्स का बहुत बहुत आभार कि इन्होंने समय दिया। तो एक क्वेश्चन मेरा लास्ट से टॉपर से रहेगा कि आप आने वाले अपने जो साथी हैं जो भी सिलेक्शन के लिए आइडल कैरियर पॉइंट में जुड़ेंगे उनके लिए कोई छोटा सा संदेश देना चाहोगे आप सभी? मेरा संदेश तो ये होगा कि आइडल में अगर आप आ रहे हो तो पहले तो 100% आप अपने दिमाग में रखो कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर 100% मेहनत करने का आपके दिमाग में है तो 100% श्योर भी हो जाओ कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग के रहेगी। मैं जब यहाँ पे पहली बार आई थी तो मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि मुझे स्टेनो लगना है या वगैरह कुछ और। मेरा बस ये मोटिव था कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए और सर ने फुल अश्योरेंस दी थी उस दिन कि जैसा मैं कहूँगा वैसा अगर तू करेगी तो तेरी गवर्नमेंट जॉब पक्की है। तो मैंने मतलब एक सेटिस्फेक्शन होता है दिमाग में कि हाँ ठीक है, अब मतलब आप सही जगह पहुँच चुके हो। तो वो जब सेटिस्फेक्शन हो गया और उन्होंने जैसा बोला मैंने वैसा ही किया। हाँ थोड़ी बहुत गलतियाँ होती है, वो ऐसा नहीं बोल सकती कि मैंने अपना 100% दिया, लेकिन मैंने कोशिश पूरे अपने 100% की और आज भी आपके सामने हूँ। तो ऐसे अगर आप यहाँ पे आओ तो 100% श्योर है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी अगर आपने वो सब कुछ किया जो इन्होंने कहा। बिल्कुल। तो फर्स्ट रैंक बनने की एक अपनी खुशी होती है। आपके कोई भाई या बहन यहाँ आइडल में अभी अध्ययनरत हैं? नहीं अभी तो नहीं है, लेकिन मेरे भौजी की लड़की थी आशा दी, वो पहले 2018 वाली वैकेंसी में स्टेनोग्राफर में सेलेक्ट हुई थी। उनकी पोस्टिंग अभी नाथद्वारा राजसमंद में है और उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे आई थी। उन्होंने ही सजेस्ट किया कि तू वहाँ पे जा और तैयारी कर, तेरा हो जाएगा। वो बड़ी बात है कि एक बहन ने कहा, बहन यहाँ आई और आज फर्स्ट रैंक लेके जो है वो बैठे हैं, फर्स्ट रैंक सचिवालय जाने के लिए तैयार हैं। तो एक अपने आप में एक इतिहास इन्होंने जो है रच दिया अपनी बहन के सपोर्ट के कारण, सर के निर्देशन के कारण, और टॉप 10 रैंक आपके सामने बैठी है। तो आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि देखो मेहनत करनी है तो अनुशासन में रहना पड़ेगा, सफलता लेनी है तो आपको जो है सर के निर्देशन में रहना पड़ेगा। और सफलता मिलना मुश्किल बात नहीं है, बस ज़रूरी है आपका आपकी रेगुलरिटी कैसी है और आपका अनुशासन कैसा है। आप पढ़ाई में कितने जो है उत्सुक रह सकते हो, कितना जागरूक होकर उस पढ़ाई को अपने अंदर जो है ग्रहण कर सकते हो, वो बड़ी बात है। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतना समय दिया। सर का खास तौर से धन्यवाद जो एक ऐसे सिस्टम में रह के जो है इन्होंने 10 से 15 मिनट निकाली, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।